Hello everyone, welcome to today's session and today we're going to start with part 3 of the chapter electricity. We have completed till what we say current. We started with charges, then we have understood about how Coulomb is calculated, the SI unit of charge, and then we have moved on to then electric potential and potential difference, and from there in which we have understood about what is current and how the direction of current is adjusted, or how the direction of current is understood on the basis of conventional direction and at the same time the actual flow of current. So today we will be discussing more about Ohm's law, how it is verified. Now Ohm's law, if you take up in this entire chapter is based on Ohm's law. Though it's a very simple concept, but yes, it is a very important concept. But before going on to that, I will be explaining certain symbols, बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए या फिर कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको उसका बेसिक सिम्बल्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग द सिम्बल्स फर्स्ट एंड देन वील मूव ऑन टू इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम्स. ओके, एंड आई सपोज एवरीबडी इज मेकिंग आउट द नोट्स साइमल्टेनियसली. दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. मैं वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन वॉट द सिम्बल्स आर बेसिकली. नाउ हेयर यू कैन सी this one, the first one, okay, with a positive and negative side. So it's simply shows it off. This is basically a cell. और जब आप नीचे वाला देखिए, नीचे वाला अगर आप देखोगे तो सेल्स का काउंट बढ़ गया. तो जब सेल्स का काउंट बढ़ जाता है, that becomes a battery. I think pretty simple. Okay, so the first one is cell and the second one is battery. Now a simple straight line is basically a connecting wire. So this is a connecting wire, right? And this one, the wire is having a dot in between. Now what do you say about this particular wire? This is a wire with a joint, so I can simply say it as a wire joint. Simple, right? Now the second one is fifth one is interesting. The fifth one, you can see that a wire is overlapping another wire, right? So when the wire is overlapping another wire, so this we can say wire crossing without contact. So the wire is crossing without contact. Okay, so that becomes part 5. Now part 6, this is known as resistance. We will be discussing about resistance in the coming session. इसको resistance भी बोल सकते हैं या फिर fixed resistance भी बोल सकते हैं. Okay, now the next one you can see here, यहाँ पे एरो साइन के ऊपर एक जिगजैग लाइंस के ऊपर एक एरो साइन है, और नीचे वाला देखिए जिगजैग लाइंस के क्रॉस करते हुए एक एरो साइन है. तो ये जो है यहाँ पे, इसको बोला जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस. ओके, एक तरफ जब रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है तो वो सिक्स्थ वाला पार्ट है, और जब आप रेजिस्टेंस को आप खुद चेंज कर सकते हो उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. उस वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक नाम है, उसको बोला जाता है रियोस्टैट. RHEOSTAT, rheostat. Okay, so you can call it as by both the names. Either you call it as variable resistance or you call it as rheostat, mean the same thing. Now the eighth one में ये वाला symbol और ये वाला symbol both are referring it to nothing but open switch. Okay, now in the ninth one, this one and this one both are referring it to a closed switch. तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि जो नाइन्थ वाला पार्ट है, नाइन्थ वाला डायग्राम इज़ द वन इन विच करंट इज़ फ्लोइंग. जब तक आप स्विच को क्लोज नहीं करोगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा. सिंपल एज दैट. नाउ कमिंग टू टेंथ पार्ट में ये दोनों सिंबल, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब और एन इलेक्ट्रिक लैम्प. सो विच एवर यू से, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैम्प. ओके, now moving on further, moving to 11th one, this one is known as ammeter. ammeter का symbol देखिए, there is a circular thing, उसके बीच में A लिखा है और लेफ्ट एंड राइट साइड में सिम्बल्स है, साइन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड. इसका मतलब क्या है, ये वाला एंड पॉजिटिव की तरफ जुड़ेगा और ये वाला एंड नेगेटिव की तरफ जुड़ेगा. सो दिस इज ammeter. सिमिलरली नीचे 12th वाला जो है वो है वोल्ट मीटर का साइन भी इट इज़ प्रीटी सिंपल, राइट? सो वोल्ट मीटर, एंड इसको भी वैसे ही लगाया जाता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव एन के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव एन के साथ. एंड देयर इज़ अनदर डिवाइस जो कि हम आने वाले क्लासेस में और अच्छे से स्टडी करेंगे, विच इज़ गैल्वेनोमीटर.
नो गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर दोनों बेसिकली मेजर करता है करंट को, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस. एमीटर एक पर्टिकुलर हायर वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है, वेर एज गैल्वेनोमीटर माइक्रो करंट्स को भी वो मेजर कर सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जो LEDs होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, LED जो होता है, LED में जितना करंट जा रहा है वो अगर मुझे मेजर करना तो आई विल यूज़ अ गैल्वेनोमीटर. और अगर कोई सर्किट डायग्राम में अगर करंट जा रहा है तो सर्किट में तो आई विल यूज़ एन एमीटर. सो यू विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस ऑफ एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इन द कमिंग क्लासेस. ओके, so using all these symbols we will be defining the next thing which is known as a electric circuit and circuit diagram. अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक की टर्म है, दैट इज़ अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ. ओके, सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ बेसिकली कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसमें वायर्स होते हैं, रेजिस्टेंसेस होता है, स्विच होता है, ठीक है, सेल होता है, एंड एट द सेम टाइम जिससे क्या हो रहा होता है अलॉन्ग विच अ करंट फ्लोज. सो इफ़ यू गो थ्रू द डेफिनेशन समटाइम्स दे आस्क इट, बट जनरली ये अंडरस्टैंडिंग के लिए सीखा जाता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है. सो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट? एन कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of wires and other resistances and switch between two terminals of a battery along which a current flows. Okay, that is what an electric circuit is. Now once you come to circuit diagram, now what is a circuit diagram? It is basically a diagram which indicates how different components, ये सारे जितने भी components हमने सीखे हैं ना, तो how different components in a circuit have been connected using electrical symbols. ठीक है, तो circuit diagram is just a representation of electric circuit, right, using all those symbols and all, right. Now moving on to the most important topic, that is the Ohm's law. Now Ohm's law in simple sense है क्या? Ohm's law एक relationship बताता है किसके बीच में? V और I के बीच में. Now last class में मैंने आपको ये क्लियर करके दिया था कि करंट तभी पॉसिबल होगा जब बैक एंड में क्या बन रहा है वहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से डिनोट कर सकता हूँ. तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तब तक क्या नहीं आ पाएगा? करंट नहीं आ पाएगा. Okay, so basically Ohm's law is the relationship between potential difference and current. अब वो कैसे? According to Ohm's law, at constant temperature, now this key term is very important. आपको आगे आने वाले क्लासेस में समझ में आएगा कि मैंने constant temperature क्यों बोला, because temperature has a variation with current. Okay, so at constant temperature the current flowing in the circuit, okay, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Simple as that. ठीक है, हमारा करंट जो भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के. मैथमेटिकली देखो, अगर मैं मैथमेटिकली चेक करूँ, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मीन्स द सेम थिंग. लेकिन जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो ध्यान से सुन लीजिएगा इसको. डेफिनेशन के टाइम पे वी हैव टू प्लेस करंट पहले एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस बाद में. कहने का मतलब, according to Ohm's law, at constant temperature the current flowing in the circuit is directly proportional to potential difference across its end. Okay, अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ, like अगर मैं लिखूँ the current flowing according to Ohm's law at constant temperature the potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing in it. Mathematically ठीक है, लेकिन subjective wise गलत हो गया. क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहीं पे मैंने क्लैरिफाई कर दिया था कि किसके वजह से कौन आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से करंट आ रहा है, ना कि करंट के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस. तो पहले आप करंट को लिखेंगे फिर बाद में पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे. सो द डेफिनेशन गोज वेरी सिंपल. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड. सो दिस इज द वे इट हैज़ टू बी रिटन. उसके बाद इसका डेरिवेशन है I इज इक्वल टू V बाई I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ओके, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है. वो कांस्टेंट है यहाँ पे R, विच इज़ नोन एज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस आप अभी आने वाले क्लासेस में देखेंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है. सो ये 3 स्टेप है आपका डेरिवेशन. सो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट इज़ V इज इक्वल टू IR. ओके, दिस V इज इक्वल टू IR इज़ योर थर्ड फार्मूला. अभी हमने सबसे पहले कौन सा फार्मूला सीखा था? सबसे पहले हमने सीखा था V इज इक्वल टू W/Q. ये था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला. फिर हमने सीखा I इज इक्वल टू Q/T, ये करंट का फॉर्मूला था. तीसरा फॉर्मूला है ओम्स लॉ विच इज़ V इज इक्वल टू IR. तो टेक्निकली V इज इक्वल टू IR क्या? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका? ओम्स लॉ का. ओके, ओम्स लॉ का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. नाउ इफ़ यू जस्ट चेक आउट द रेशो ऑफ V एंड I.
इज़ नोन एज अ कांस्टेंट. वाई वी कॉल इट एज अ कांस्टेंट? बिकॉज v की भी कुछ मैथमेटिकल वैल्यू है, i की भी कुछ मैथमेटिकल वैल्यू है. जब आप उसके वैल्यूज़ को क्रॉस करोगे तो यू अल्टीमेटली गेट अ कांस्टेंट विच इज़ नोन एज r. नाउ एज पर v इज इक्वल टू आई आर, तो i की वैल्यू वहाँ से क्या आ जाएगी? i की वैल्यू आएगी v बाई आर, इजंट इट? i इज इक्वल टू v बाई आर होगा, यानी कि टेक्निकली i इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, जो कि हम ऊपर भी करते आ रहे थे. और अगर आप i और r का रिलेशन देखोगे, i इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, अगर V बढ़ेगा तो आपका I भी बढ़ेगा, और अगर R बढ़ेगा तो आपका I क्या होगा? यहाँ पे कम हो जाएगा. तो वही मैंने यहाँ पे नोट में एक्सप्लेन किया है. मैंने नोट में क्या एक्सप्लेन किया? पहला नोट है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो I भी क्या होगा? डबल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर है. On the other hand, if potential difference is halved, what happens? I also become half. Simple as that. डायरेक्ट रिलेशन है. इसका उल्टा रिलेशन किसके साथ है? रेजिस्टेंस के साथ. अगर R डबल हो जाता है तो I क्या हो गया? हाफ हो गया. और अगर R हाफ हो जाता है तो I क्या हो गया? डबल हो गया. ये ध्यान में रखिएगा कि I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर मुझे कहीं पे करंट ज़्यादा चाहिए तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो. और अगर मुझे कहीं पे करंट कम चाहिए तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो. ओके, सो दैट इज़ व्हाट द बेसिक ओम्स लॉ इज़ ऑल अबाउट. सो अल्टीमेटली हमने अभी क्या देखा? हमने डिफरेंट सिम्बल्स देख लिए, जिसमें हमने ये देखा कि सेल कैसे डिनोट किया जाता है. बैटरी, देन कनेक्टिंग वायर, अ वायर जॉइंट, देन यू हैव रेजिस्टेंस, देन यू हैव वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑल्सो नोन एज रियोस्टैट. ओपन स्विच कैसे बनाते हैं, क्लोज स्विच कैसे बनाते हैं, देन ऑल सच स्टफ. ओके, देन वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द सर्किट डायग्राम्स, राइट? Then we have clearly understood about what is basically an Ohm's law. Ohm's law is basically the relationship between potential difference and current. And how do you define it? कि जब constant temperature में current जो है वो directly proportional किसके होता है? potential difference के proportional होता है. तो I directly proportional to V directly proportional to I, and then V is equal to Ri, where R is a constant, and ultimately V is equal to IR. So V is equal to IR is your a mathematical expression for Ohm's law. Understood? एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है. सो उसका वेरिएशन भी आपको कभी कभार 1 मार्कर में पूछा जा सकता है. ओके, सो अल्टीमेटली ओम्स लॉ किन 3 क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन है? करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस. और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? V is equal to IR. This V is equal to IR is going to stay for the entire chapter, be it any numerical. Okay? Now we are moving on further. अब फर्दर जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है रेजिस्टेंस. हमने अभी रेजिस्टेंस कवर अप किया था, तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजिस्टेंस. सो लेट्स कम टू दिस पॉइंट. इस वाले डायग्राम में आइए ज़रा. अब यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर बना रखा है और मैंने कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से ज्वाइन कर रखा है, यानी इसके अंदर करंट फ्लो करेगा. नाउ करंट में कौन फ्लो करता है? एक इलेक्ट्रॉन. मान लो ये इलेक्ट्रॉन है. ओके, ये जो मैंने दिखा रखा है ये एक इलेक्ट्रॉन है. अब इस इलेक्ट्रॉन के पाथ में कौन कौन आएगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, या फिर दूसरे एटम्स आ सकते हैं जिससे कि वो कंडक्टर बनाए, या फिर दूसरे आयन्स आ सकते हैं. यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के पाथ में आयन्स आ रहा है, एटम्स आ रहा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. टेक्निकली व्हाट इज़ हैपनिंग? उस इलेक्ट्रॉन को बीच में क्या मिलेगा? कोलिजन मिलेगा. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन उस पाथ से जा रहा होता है तो यहाँ पे बेसिकली होगा कोलिजन, राइट? वाई कोलिजन? बिकॉज दैट दिस इलेक्ट्रॉन gets collided with different ions, can get collided with different atoms, or can get collided with the other electrons. So technically what is happening? There is obstruction or hindrance or opposition to the flow of electron. Yes or no? Yes. तो टेक्निकली क्या हो रहा है? कोई भी कंडक्टर हो, जब उसके अंदर से करंट जा रहा है, जब करंट जा रहा है यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सी बात है वो इलेक्ट्रॉन को कोलिजन मिलेगा. किसकी तरफ से? आयंस की तरफ से मिल सकता है, एटम्स की तरफ से मिल सकता है, या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से कोलिजन मिल सकता है. और उस कोलिजन की वजह से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा, हिंड्रेंस होगा और ऑपोजिशन होगा. ठीक है, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर सिंपली कह सकते हो द फ्लो ऑफ करंट. सो बेसिकली क्या है?
बेसिकली आपने यहाँ देखा कि हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसको अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, और इसी प्रॉपर्टी को क्या डिफाइन किया गया है, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कोई भी कंडक्टर का। कोई भी कंडक्टर ले लो, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। देयर इज़ नो सच कंडक्टर इन दिस वर्ल्ड विच हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस। Yes, there can be conductors which has very less resistance, but there are no conductors in this world which has zero resistance. वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई भी कंडक्टर होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अंदर एटम्स होंगे, उसके अंदर आयंस होंगे। सो डेफिनेट सी बात है, जब आप करंट को पास कराओगे तो जो करंट है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पाथ में डेफिनेटली कोलिजन आएगा, हिंड्रेंस आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन, उस हिंड्रेंस और उस ऑपोजिशन को ही क्या बोला गया है, resistance. So how do you define a resistance? Resistance is basically the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it. Okay, and what you see, the SI unit of resistance, the SI unit of resistance is basically OHM, which is ohm, and it is denoted by sin omega. ये है उसका साइन, तो बनाने का तरीका ये है, दिस इज ओमेगा साइन। ओके, सो अगर मान लो मैं कहता हूँ एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू है 10 ओम, तो मैं कैसे लिखूँगा उसको, आई विल राइट लाइक दिस 10 ओम। ओके, सो दिस वे इट हैज़ टू गो। सो आई सपोज आपको रेजिस्टेंस क्या है अब समझ में आ गया। कोई भी कंडक्टर ले लो, उस कंडक्टर में हमेशा क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, कम और ज़्यादा दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट रेजिस्टेंस इज़ गोइंग टू बी देयर। नाउ आपने एक चीज़ देखा होगा, ये हम आगे करेंगे वैसे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, कोलिजन। कोलिजन, कोलिजन यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस और ऑपोजिशन। तो कोलिजन के वजह से, ओके, कोलिजन के वजह से क्या होता है, एक एनर्जी डिसिपेट होता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में डिसिपेट होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट होता है। तो इसीलिए कभी भी आप जब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्विच ऑन करते हो, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स हॉट। क्यों? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब वो कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या है, कोलिजन होगा। कोलिजन का मतलब क्या है, वहाँ पे हीट एनर्जी डिसिपेट हो रहा होगा। सो इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का अल्टीमेट वजह कौन है, इट इज़ बेसिकली द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का बेसिक वजह कौन है, इट इज़ बेसिकली द कोलिजन। ओके, सो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड विद ईच अदर। तो एक और बात ध्यान से देखिए, कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रॉन पास करता है, इलेक्ट्रॉन्स को बीच में उसके पाथ में दूसरे आयंस, दूसरे एटम्स और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे होता है कोलिजन। ओके, और उस कोलिजन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आता है, हिंड्रेंस आता है, या फिर ऑपोजिशन आता है। और उसी ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस और ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर टू द फ्लो ऑफ करंट को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। कोलिजन के वजह से हीट एनर्जी डिसिपेट होता है, राइट। कोलिजन की वजह से क्या डिसिपेट होता है, हीट एनर्जी डिसिपेट होता है। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि हीट एनर्जी का बेसिक वजह कौन है, हीट एनर्जी का बेसिक वजह इज नन अदर देन the resistance. Okay, now moving on to the very important aspect of this Ohm's law, which is basically the graph between V and I. Now question जो आता है बोर्ड्स में, वो आपको आता है 3 मार्कर में जनरली, या फिर फिलर क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, स्टेट एंड वेरीफाई Ohm's law। तो स्टेट में तो आपने डेफिनेशन दे दिया और डेरिवेशन दे दिया, अब वेरीफाई में क्या करेंगे, तो उसका प्रॉपर आंसर है जो आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको ऐसे ही लिखा जाता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे यू कैन राइट द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। नाउ सबसे पहले आपको पता है कि वी और आई डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर है। तो अगर आप उनका ग्राफ बनाओगे बिटवीन वी एंड आई, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ये आपको ग्राफ मिलेगा यहाँ पे। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे, मैंने एक्स एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस को रखा है और वाई एक्सिस में करंट को रखा हुआ है। ओके, so you are going to get a straight line like this, you're going to get a straight line like this. Okay, now this straight line, every point on this straight line, be it A, be it B or be it C, हर एक पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन में किसको रेफर करेगा, रेजिस्टेंस को रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल टू क्या है, आई आर है। तो अगर मैं R की वैल्यू यहाँ से डिफाइन करूँ तो वो क्या होगा, V बाय आई, यानी कि V बाय आई का जो रेशो मिलेगा मुझे इस ग्राफ से, that ratio every time it is going to be same. Okay, have you understood? So if I make a graph between V and I, I'm always going to get a straight line passing through the origin. Why? Because V and I, they are directly proportional to each other. V and I, they are directly proportional to each other, therefore I'm always going to get a straight line. Okay,
तो ये है आपका फर्स्ट लॉजिक व्हेन एवर इट कम्स टू ओम्स लॉ। क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है तो उनका ग्राफ भी एकदम पॉजिटिवली स्लोप्ड आएगा, राइट। तो आपके पास दो तरीका है वेरिफिकेशन करने का, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का। देयर आर टू वेज। फर्स्ट वे क्या है, शो दैट फॉर अ गिवन कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है अगर आपके पास, तो उनका जो रेशो यानी कि V/I का रेशो एक कांस्टेंट आना चाहिए, और अगर वो कांस्टेंट आ रहा है दैट मीन्स ओम्स लॉ इज़ वेरीफाइड। एंड हमेशा आप यही देखोगे V/I का रेशो हमेशा क्या आने वाला, R आने वाला। और अगर R की वैल्यू हर जगह सेम है, जैसे अगर मैं पॉइंट A की बारे में बात करूँ, अगर आप ग्राफ पे ध्यान दें, अगर मैं पॉइंट A में R निकालूँ, यहाँ पे जो R की वैल्यू है और यहाँ पे जो R की वैल्यू, अगर यहाँ पे जो R की वैल्यू है, यानी कि पॉइंट A, B और C में जो R की वैल्यू है, तीनों R की वैल्यू अगर सेम है, इसका मतलब मेरा ओम्स लॉ वेरीफाइड है। हैव यू अंडरस्टूड? दैट इज़ द वे इट हैज़ टू गो। So this is the first way of verifying Ohm's law. What is it? That for a given conductor, the ratio of V/I should be coming out a constant which is known as R. Then the Ohm's law is verified. और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप एक ग्राफ बनाओ, that graph between V and I, and if you are getting a straight line, even then the Ohm's law is verified. Okay. So you have two ways to verify Ohm's law. One, that the ratio of V/I should be a constant, and that constant should have equal values. And if it is coming out to be equal value, Ohm's law is verified. Now on the other hand, you make a graph with the given values, and if the graph is coming out to be a straight line, if it is coming out to be a straight line, then again the Ohm's law is verified. And this is the most important part. Whenever we define Ohm's law, we need to make a circuit to verify the Ohm's law. Now the circuit to verify the Ohm's law is very simple. हम लोग एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाते हैं जिसमें मेन स्ट्रीम क्या क्या होना चाहिए। इसमें एमीटर होना चाहिए, वोल्ट मीटर होना चाहिए, रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, बैटरी होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, रियोस्टैट होना चाहिए और कनेक्टिंग वायर्स होना चाहिए। सो एज सिंपल एज दैट। सो हाउ मेनी नोटिफिकेशन, हाउ मेनी लेबलिंग यू हैव टू डू? अप्रॉक्सीमेटली 7 लेबलिंग है। ओके, एंड दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ वेरी सिंपल टू मेक। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव एंड के साथ ही रखना है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पे भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज़ भी मैम देखते हैं। एंड आपका डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ बेसिकली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज़ द कन्वेंशनल वे ऑफ गिविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, सो दिस इज़ वॉट एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू वेरीफाई दी ओम्स लॉ। ओके, सो यहाँ पे आज हम लोग इतना ही रखेंगे, बिकॉज द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बेसिकली रेजिस्टेंस एंड इट्स फैक्टर्स and resistivity, and furthermore we will be discussing about different combinations of resistances, in which we will be studying about series combination and parallel combination and uske numericals and so on and so forth, right? So we will be discussing in the coming parts, but till this point you have to make sure that you are completing your notes simultaneously बनाते रहिए, right? और मैं बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर फॉर्मेट बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं, टू द पॉइंट आंसर्स है ये सब, और इसको ऐसे ही लिखा जाता है, राइट? Okay, so what all we have discussed today, we have discussed different symbols. Okay, we have discussed symbols, and we have understood about electric circuit diagram, and then we have understood about Ohm's law. What is basically an Ohm's law? It is basically the relationship between V and I. So V is coming out to be V is equal to IR. That's the mathematical expression for Ohm's law. हमने उनका derivation देख लिया, this is the derivation. एंड डेरिवेशन के बाद उसका डिफरेंट फॉर्मेट देख लिया। आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, एंड आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। उसके वेरिएशंस यहाँ पे देख लिए, 1 मार्कर में ये समटाइम्स ये पूछा जाता है। देन वी हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज़ एक्चुअली अ रेजिस्टेंस। कोई भी कंडक्टर होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होता है तो उसको कोलिजन मिलता है। कोलिजन दूसरे आयन्स, एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। वो कोलिजन हिंड्रेंस ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और उसी हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल कंडक्टर्स। कोई भी कंडक्टर ले लो, उसकी प्रॉपर्टी है कि इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, और उस अपोजिशन को ही क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ओम एंड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। Okay, then the most important part was the graph between V and I. You are always going to get a graph between V and I which is a straight line. Okay, if it is coming out to a straight line, that means your graph is right. If it is not a straight line, that means you're making some mistake. That means your values are not correct. Okay, and how to verify the Ohm's law? There are two ways to verify the Ohm's law. एक given conductor के रेशो को, यानी कि V by I के रेशो को आप कांस्टेंट दिखाओ। दूसरा, जो भी आपका ग्राफ है V by I का जो ग्राफ है, इट शुड कम आउट अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ अ
verified Ohm's law. Okay, and then you have to go for the circuit diagram to verify Ohm's law. Then I have mentioned what all you need to basically show in the circuit diagram: ammeter, conductor, resistance, voltmeter, rheostat, and so on and so forth. Okay, so as of now we will wrap up in this, and in the coming session we will continue with the furthermore concepts of electricity. Thank you so much.